ઓફ વડોદરા। ઇસરોના ચેરમેન એસ સોમનાથ દ્વારા હાલ બધાને જ એક ચેતવણી આપવામાં આવી રહી છે। જાણો શું છે આ ચેતવણી। વડોદરામાં યોજાયેલી 7મી ગુજરાત છાત્ર સાંસદમાં હાજરી આપવા માટે આવેલા ચંદ્રયાન મિશનની સફળતાના નાયક એવા એસ સોમનાથે પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં કહ્યું કે આપણા જીવનમાં એઆઈનો પ્રવેશ મોબાઈલ અને કમ્પ્યુટર થકી થઈ રહ્યો છે। આપણું સતત મોનિટરિંગ થઈ રહ્યું છે। આપણો ડેટા ક્યાંક ને ક્યાંક એકત્રિત થઈ રહ્યો છે। શક્ય છે કે ભવિષ્યમાં ઘણા બધા નિર્ણયો એઆઈનો ઉપયોગ કરીને લેવાય, પણ જે રીતે દરેક ટેકનોલોજીના સારા અને ખરાબ પાસા છે તેવું જ એઆઈનું પણ છે। જો તેનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ નહીં થયો હોય તો માનવ સભ્યતા માટે તે ખતરનાક સાબિત થશે। ઇસરો ભારતના પહેલા અવકાશ યાત્રીને સ્પેસમાં મોકલવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે। આ અંગેના સવાલમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે ગગનયાન મિશનની એક મહત્વની ટ્રાયલ તાજેતરમાં લેવાઈ હતી। આગામી સમયમાં બીજી 3 મહત્વની ટ્રાયલ હાથ ધરાશે। 2025માં માણસને અવકાશમાં મોકલવાનું લક્ષ્યાંક સમયસર પાર પડશે તેમ કહ્યું હતું કે નાસા અને ઇસરો સંયુક્ત રીતે કામ કરી રહ્યા છે। આવા જ એક જોઈન્ટ પ્રોજેક્ટમાં બંને સંસ્થાઓ જે સેટેલાઇટ લોન્ચ કરવાની છે તેના કારણે દર 15 દિવસે પૃથ્વીની સેટેલાઇટ ઇમેજીસ લેવી શક્ય બનશે, જેમાં ધરતીના પેટાળમાં થતી હિલચાલ, ધરતી પર બરફનું પ્રમાણ, જંગલોનું કદ, પાણીનો જથ્થો જેવી ઘણી જાણકારીઓ ભારત અને અમેરિકાથી ઉપલબ્ધ થશે। ધર્મગુરુ કલ્બે રશેદ રિઝવીએ કહ્યું હતું કે કોઈ પણ દેશમાં જ્યારે વસ્તી વધે અને સમાજનું વિસ્તરણ થાય ત્યારે કાયમ સૌહાર્દ જળવાય તે જરૂરી નથી। મહત્વની બાબત છે કે આગ લાગી હોય ત્યારે દેશના લોકોની જવાબદારી આગમાં તેલ રેડવાની નહીં પણ પાણી નાખવાની, બુઝાવવાની છે। તો જો દેશમાં બેકારી, મોંઘવારી જેવી સમસ્યાઓ ઉકેલાતી હોય તો દેશને ભલે હિન્દુ રાષ્ટ્રનો દરજ્જો મળતો, તેમાં કોઈ વાંધો હોવો જોઈએ નહીં। આધ્યાત્મિક ગુરુ અને માર્ગદર્શક બી.કે. શિવાનીએ કહ્યું કે બાળકો તેમની આસપાસ જે જોતા હોય છે તેનો પ્રભાવ તેમના પર પડે છે। યુપીએસસીની પરીક્ષાની પદ્ધતિમાં પણ આ સરકાર ભવિષ્યમાં ધરખમ ફેરફારો કરશે। ધાર્મિક સ્થળોની મનની પીડા દૂર કરનાર સ્થળો તરીકે જોવા જોઈએ, જેમ કે ઇસ્કોન સાથે જોડાયેલા આધ્યાત્મિક માર્ગદર્શક ગૌરાંગદાસ પ્રભુએ કહ્યું હતું કે હવે માનસિક સ્વાસ્થ્યનું પણ મહત્વ વધી ગયું છે। માનસિક પરેશાનીઓના કારણે દેશમાં રોજ 400 લોકો આત્મહત્યા કરે છે। તણાવને કોઈ ધર્મ નથી હોતો। લોકોનું માનસિક સ્વાસ્થ્ય સુધરશે તો દેશનો માહોલ પણ સુધરશે। આ માટે આપણે દેશના તમામ ધર્મના ધાર્મિક સ્થળોને મનની પીડા દૂર કરનારા સ્થળો તરીકે જોવા જોઈએ। बैठ के अगर इंटरेक्शन करना है तो बहुत सौभाग्य की बात है। मैम हिंदी रखना, लैंग्वेज हिंदी रखना। ठीक है। तो मैंने मैकेनिकल से मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट करके आई वेंट दिल्ली जाके पहले तो गुजरात से बहुत कम बच्चे, मैंने 2014-15 में एक वो फैसला लिया और घर वालों ने भी सपोर्ट किया कि नहीं चलो उधर चलते हैं। एक इंस्टीट्यूट था सर, वहाँ हमारे हिस्ट्री टीचर हुआ करते थे, अभी भी हैं, गुरु हैं तो गुरु ही रहेंगे लाइफ लॉन्ग।
और उन्होंने बहुत अच्छी बात एक बोली थी जो मेरी लाइफ में एग्जैक्ट डिट्टो वो कहीं ना कहीं बैठती है कि जैसे प्रश्न पूछते हैं ना कि सर व्हाट इफ कि हम जितनी भी हमारे अटेम्प्ट्स हैं सिविल सर्विसेज के अगर हम क्रैक नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या करेंगे लाइफ के साथ। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो अपना करियर छोड़ के दूसरे सब पापा का बिजनेस छोड़ के इसमें आ जाते हैं, उसके बाद क्या, एक एज भी हो जाती है फिर तो करेंगे क्या फिर। तो सर का एक बहुत अच्छा सा आंसर नहीं था, ज्ञान था, और वो अगर हम मेरे जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यंग जनरेशन है, अगर थोड़ा वो क्वाट है ना वो अपने दिमाग में उतार ले तो कोई फिक्र करने की या फिर कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है फॉर करियर के रिगार्डिंग। सर ने बोला कि इतना ज्ञान, हर विषय का थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपको मिल रहा है यहाँ इस कोचिंग के माध्यम से, चाहे हिस्ट्री ले लीजिए, चाहे इकोनॉमी ले लीजिए, चाहे भौतिक शास्त्र ले लीजिए, रसायन शास्त्र ले लीजिए, मैथमेटिक्स ले लीजिए, इंजीनियरिंग ले लीजिए, मेडिकल फील्ड ले लीजिए, कोई भी विषय वस्तु ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान आप नहीं पढ़ेंगे। कोई कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन बन जाएंगे, एमपी और एमएलए बन जाएंगे। सो दिस इज द थिंग जो मेरे साथ हुआ। एंड मैं हर रोज सर के वीडियो देखती हूँ, जब भी जो एक मॉरलिटी चाहिए आपको, एक बूस्टर डोज चाहिए आपके फील्ड में या फिर पर्सनल लाइफ में। इज अ वेरी गुड स्पीकर, ऑरेटर एंड मोटिवेशनल कंटेंट इनका रहता है। तो ये जो फैक्ट बात है कि, और सर आपने अभी पूछा कि ब्यूरोक्रेसी में आ जाते तो पॉलिसी मेकर बन जाते, तो मैं वही एक करेक्शन करना चाहूँगी कि सर आना वहीं पे था, लेकिन इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक नहीं होता है, तो प्लान वही था। देन आई क्रैक्ड डिफेंस का जो रिटर्न एग्जाम, बट एसएसबी आने वाला था, तब आई गॉट एंगेज, और उसके बाद शादी हो गई, जल्दी फैमिली स्टार्ट हो गया। तो लाइफ का एक जो डाइवर्जन होता है ना, लेकिन एक चीज़ होती है कि जो हम हैं इंडिविजुअल, वो बनाए रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। वो हमारा मोटिव, मेरा मोटिव था कि मुझे सो एंड सो माध्यम से देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है, कुछ भी, चाहे वो माध्यम ब्यूरोक्रेसी का हो, चाहे वो माध्यम पॉलिटिक्स का हो। और उससे इन बिटवीन आई मेट अवर ऑनरेबल पीएम सर, मोदी जी से मैं मिली, उन्होंने बातों बातों में बोल दिया कि इतनी सेवा के काम आप करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट के लिए आप 200 जितने विलेजेस घूमी है, स्त्री सशक्तिकरण के लिए आप काम करती रहती है, तो व्हाई डोंट यू ज्वाइन पार्टी। तभी मैंने सर से बोला कि सर ऐसा सोचा नहीं है पॉलिटिक्स में एंटर करना। तो उनका एक बहुत अच्छा सिंपल सा था कि हम बहुत ही छोटी छोटी बातों में सोसाइटी को या फिर गवर्नमेंट को कोसते रहते हैं, क्रिटिक करना। तो ये बहुत ही लाइक नॉर्मल बात है कि हम इजी जैसे क्रिटिक कर दिया, कमेंट कर दिया, कोस दिया। अगर आप कुछ चीज़ें बदलना चाहते हो, कुछ अच्छे प्रोस्पेक्टिव में सोसाइटी को देना चाहते हो, तो आपको खुद को उसमें उतरना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल ये पॉसिबल ही नहीं है कि बाहर से तमाशा देखो, भाई हमें तो पैर पे पैर रख के टीवी देखते उठते सरकार को कोसना है या फिर यूथ को कोसना है या फिर सो एंड सो समाज को कोसना है। ये ठीक करना है, अपने हिसाब से चलाना है, अच्छे डायरेक्शन में देश को और समाज को लेके चलना है, उधर खुद आना पड़ेगा। तो वही एक था माध्यम मेरे लिए कि मैं इस माध्यम से चाहे आईएएस आईपीएस बनती या फिर अभी पॉलिटिशियन हूँ, मैं अपने आप को एज ए पॉलिटिशियन इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहती हूँ। राजकारणी और सेवाकारणी ये दोनों जो उपनाम है उसमें बहुत फर्क है। तो मेरे लिए ये सेवा का माध्यम है, और ईश्वर कृपा से जब आपके पास पद प्रतिष्ठा संपत्ति हो तब आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है सोसाइटी के प्रति कि हम अपना कंट्रीब्यूशन दें। सर हैं तो सर के माध्यम से बहुत सारे छात्र को सिविल सर्विसेज क्रैक करने में हेल्प मिली। हमारे जैसे छात्र को कहीं पॉलिटिक्स में आके सेवा करने का मौका मिला। तो ये कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व बनता है कि हम अपनी तरफ से कितना सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते वापस देते। इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी, इट्स ऑल अबाउट मैनकाइंड। जैसे आप मोदी के बारे में बता रही थी, मतलब आपको बोला कि आप इनवाइट किया आपने, आपको मोदी जी ने कहा आप पॉलिटिक्स में आइए। 2024 के लिए कुछ जिम्मेदारी मिली है आपको? सर, भारतीय जनता पार्टी का हर एक प्रत्येक कार्यकर्ता वो चुनाव को ध्यान में रख के काम नहीं करता। हमारे लिए 365 दिन हमारे लिए पार्टी की जिम्मेदारी है, समाज के प्रति जिम्मेदारी है और डेवलपमेंट के काम के प्रति जिम्मेदारी है। इट्स नॉट अबाउट 2024 और इट्स नॉट अबाउट 2029 और 27। इट्स ऑल अबाउट डे टू डे वर्क, डे टू डे लाइफ, डे टू डे जन जन तक पहुंचना। यही एक एजेंडा रहता है पार्टी का। About that, the progress. Of course, I can. Of course, human spaceflight program is announced about 4 years back.
Of course, there was certain amount of delay due to various reasons, COVID and many other things. Now we have fresh target is that we should have the actual human spaceflight happening in 20. हिंदी हो जाए थोड़ा हिंदी तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखिए सर वहाँ भी तो उन्होंने भी मैं आऊंगा तो सर कैमरा आ जाएगा। हिंदी में सर हिंदी में मेरा हिंदी तो अच्छा नहीं है। अच्छा तो मैं ट्राई करूँ। जी अच्छा, हमारा गगनयान प्रोग्राम जो है वह 4 साल पहले थी हमने शुरू किया था। उसके बाद जो डिले होता था उसके कोविड के कारण, पर अब हमारा ये शेड्यूल में रीफिक्स किया है। प्रधानमंत्री जी ने हमको ये इसके बारे में कई बातचीतें की और हमारा नई दिशा दी है इसमें। सो हमारा फर्स्ट मिशन जो होगा 2025 में, उसके पहले कई टेस्ट फ्लाइट्स थे। हमारा ये पहला टेस्ट फ्लाइट था, ये टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन था, उसको पूरी किया अच्छी तरह। हमारे उसके बाद हमारा 3 टेस्ट फ्लाइट्स होने वाला है। और हमारा पहला अनमैन्ड मिशन जो है इसका हम लोग GX बोलते हैं, ये तो होगा अगले साल जून पे। इसके बाद हमने ये अनमैन्ड मिशन 2 बार और रिपीट करेगा। ये सभी अच्छी तरह होते तो हम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट तो करेगा और एस्ट्रोनॉट को ले लेंगे तो ऑर्बिट पर, और उसके वापस सेफ लाना है तो हमारा एक बहुत कमजोरी बात है। तो सेफ्टी फर्स्ट, सो फॉर सेफ्टी फर्स्ट वी हैव टू डू लॉट ऑफ टेस्ट, हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट। हमने जो बोला है तो ये मेन टेस्ट है, और जो स्मॉल टेस्ट है जो होते हैं आपके नज़र में नहीं आते और मीडिया में नहीं आते, ये सभी होते रहते हैं हमारे सेंटर्स में। सो ये सभी टेस्ट अच्छी तरह होते तो समूह करेक्शन कर सकते हैं और फाइनल डिसीजन ये हमारे एस्ट्रोनॉट को भेजे या ना भेजे ये हमने ये 2025 में ले लूँगा। तो हमारा शेड्यूल है अब 2025 में हमको ये लॉन्च मिशन कर सकूँगा। ये तो ये ऑन शेड्यूल लगता है? शेड्यूल लगता है अभी तक ये ऑन शेड्यूल पे है। सर, हाउ डिफिकल्ट is to attract the top level talents toward the ISRO, because somewhere I read that के आप लोग मतलब जो आपके ऑफिसर जो IIT IIM में इंटरव्यू के लिए IIT में जाते हैं तो वहाँ से आपको मतलब वो, क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे आप ज़्यादा सैलरी नहीं दे सकते, तो ये डिफिकल्ट होता है, अभी भी डिफिकल्ट होता है? डिफिकल्ट अब कुछ डिफिकल्टी नहीं है। हमारे जो सेंटर्स में जो वैकेंसी आते हैं कई साल में हमारा वैकेंसी 100, 150, 200 तो अब जाते हैं। सो एवरी सिंगल एप्लीकेंट देयर आर 1000 एप्लीकेंट, पोजीशन 1000 एप्लीकेंट। सो हमारे जो टेस्ट ऑल इंडिया टेस्ट हम जो करते हैं फॉर साइंटिस्ट इंजीनियर्स के लिए एप्लीकेशन से 1.5 लाख एप्लीकेशन मिलते हैं। ये सभी जगह से मिलते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज से है, NIT से है और लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज से और IIT में भी। सो ये टेस्ट में बहुत ब्रिलियंट लोग आते हैं जो हमारे टेस्ट के बाद हमने इंटरव्यू करते हैं। फॉर 100 वैकेंसी वी इंटरव्यू 700 पीपल। इसके बाद हमने जो सेलेक्ट करते हैं ये 100 पीपल को, हमको इसी से समझ सका कि इतना कॉम्पिटिटिव है। सो आज ISRO में जाना और अपॉइंटमेंट मिलना बहुत कठिनाई की बात है। और कोचिंग सेंटर्स भी है, ISRO जॉब के लिए अपने कोचिंग सेंटर भी लाइक IIT वाले ऐसे कोचिंग सेंटर भी खुले कई जगह। सो हमको टैलेंट की कोई कमी नहीं है, क्या कैसे IIT में से और IIT में से NIT में से हमको मिलते हैं। सर, लेकिन आपको ये वरी नहीं